اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جنگوی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کرنٹ افیئرز. قصور میں بے قصور زینب کے ساتھ جو کچھ ہوا, ابھی تک حکومت ٹامکٹوئیاں مار رہی ہے. قانون جو ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہے اور مشینری بڑی حرکت میں ہے, لیکن نتیجہ 0/0, بلکہ بہت بڑا 0. وزیر اعلیٰ صاحب اتنی صبح وہاں پہنچے کہ نظر نہ آ سکے کہ جی اچھا جی کہ لوگ کہیں مظاہرہ ہی نہ کریں اور مرد آباد اور زندہ آباد اور اس طرح کی کہانیاں نہ ہو جائیں. اور تیسری معاملہ یہ ہے کہ اگر میڈیا اس بات کو نہ اٹھاتا اور اٹھائے نہ رکھتا تو یقینی بات ہے کہ ان حکمرانوں, اس بیوروکریسی اور اس پولیس کے کانوں پہ کوئی جون نہیں رینگنی تھی. اچھا جی, زیادہ سے زیادہ جو سزا تھی وہ یہ کہ وہاں کے ڈی پی او کو معطل کر دیا گیا, جس نے براہ راست لوگوں کو گولیاں مار کے فائرنگ کر کے مار دیا. ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ سارے موضوعات اور اس سارے معاملے کا جو بدترین پہلو, یہ خوشگوار پہلو, بدترین پہلو یہ ہے کہ بالکل خاموشی ہے اور قاتلوں کی جانب ابھی تک قانون کے ہاتھ اس طرح بڑھ کے ان کو پھندا نہیں بنایا جا سکا ان کی گردن کا. اور خوشگوار پہلو یہ ہے کہ قوم نے یکجائی اور یکسوئی اختیار کی ہے اور اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس بچی کو جو کسی ایک قصور کے کسی ایک گھر کی بچی ہے اس کو اپنے ہر گھر کی بچی سمجھا ہے. اگر یہی جذبہ موجود رہا تو یقینی بات ہے کہ آئندہ کسی کو کوئی جرت ایسی نہیں ہو سکے گی کہ وہ کسی بچی کی طرف, کسی بچے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قانون اس کی گردن ناپے, جو بھی ایسا جرم کرنے کا سوچے گا بھی صحیح. نہیں جی, مہمانان گرامی ہیں, ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں اور پھر ان سے رائے بھی حاصل کرتے ہیں. ملک شجاع الرحمان صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. آپ مرکزی لیڈر ہیں جی پاکستان مسلم لیگ نون کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد انور صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. چیئرمین ہیں جی لبرل فورم پاکستان کے اور تعلق قصور سے. جی ملک صاحب, نون لیگ کی حکومت پنجاب میں اتنے طویل عرصے سے موجود ہے, وزیر اعلیٰ کی آنیاں جانیاں ہیں, لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات کوئی ایک آدھ تو نہیں ہوا, درجنوں واقعات ہو گئے. کیا کر رہی ہے سرکار آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ واقعہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے اور بہت اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور ایسے واقعات آج سے نہیں, میرے ذہن میں یہ ایک واقعہ جو جنرل ضیاء اللہ کی حکومت میں غالباً یہ اس وقت ایک واقعہ سانحہ نواب پر ہوا تھا, اور ایک خاتون تھی جس کو ملتان یا کسی اس علاقے میں کسی کو اس کے ساتھ اس طرح جاتی کہ سارے بازار اس کو برہنہ کیا گیا تھا. تاریخ ہے پوری ہماری بدقسمتی سے. لیکن اس وقت اس کو بہت خوفناک سزا بھی ہوئی تھی ایک بچے کے حوالے سے. جب ایک شخص نے اس طرح کی حرکت کی تھی تو اس کو سرعام پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا, لوگوں کو دعوت بھی دی گئی تھی. آئیے دیکھیے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح ہوا ہے اگر ہوا تھا آپ کے ہاں جی, ابھی یہ سوشل میڈیا پہ دوبارہ بھی وہ تصویریں لوگوں نے سانحہ نوابپور کی. نو میں لاہور کے واقعے کی بات کر رہا ہوں. چلیں وہ جی, کہ اگر کوئی دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جذبہ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, کہ ہم اسے سزا ایسی دیں کہ وہ مثال بن جائے, عبرت بن جائے لوگوں کے لیے. لیکن آپ وہ سزا دینے کے لیے آپ کے ہاں کچھ سسٹم موجود ہے. اس سسٹم سے باہر نکل کے آپ اور میرے جذبات پہ وہ نہیں دی جا سکتی. وہ جج صاحب کے حکم پہ جس طرح وہ حکم فرمائیں گے اس پہ ہوگا. ہاں, اس میں ایک بات جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن کی جائے. پہلے تو آپ کی گورنمنٹ پکڑے نا جی ان کو, مسلم لیگ نون کی شہباز شریف صاحب کی حکومت ان کو قاتلوں کو پکڑے گی تبھی ہوگی نا کہانی. ججوں کے پاس تو تب جائے گی. آپ نے پہلے ہی ججوں کے پاس پہنچا دی سرکار. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا جو سسٹم ہے, پہلا اس کی جو ہے اس کی پروزیکیوشن ہے, پھر اس کے بعد اس کی جو جوڈیشری ہے ان کے پاس اس کی جو 3-4 ٹیئرز ہیں جو سارے ایف آئی آر کی ڈسٹرکٹ سے لے کے وہاں تک, اس سارے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اوکے چلیں, معاشرے پہ آ گئی یہ بات. تو تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے نا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت میں چلے گئے. میں آپ کو میرا خیال میری تائید بھی کریں گے کہ میں کسی غلط چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں, وہ آپ کی میری گورنمنٹ کی ہو, میرے لیڈر کی ہو یا کسی اور کی ہو.
गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक की बात, कोई इसमें दूसरी राय हो नहीं सकती। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इसको टैकल करना, इसको ठीक करना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट को जो उसके ऑर्गन्स हैं, और गवर्नमेंट शहबाज शरीफ तो गवर्नमेंट नहीं है ना, गवर्नमेंट उसमें पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, उसमें जुडिशरी है, ये सारी चीज़ों को मिला के इसका नाम जो गवर्नमेंट है। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको एक बहुत बड़े कदम की जरूरत है। चलें जी, वो बड़ा कदम जो है ना जी, बस वो ज़्यादा अरसा नहीं रह गया कि वो भी कदम भी उठ जाएंगे। मोहम्मद अनवर साहब, आपका ताल्लुक चूँकि कसूर से है, वहाँ लोगों के जज्बात इतने अचानक बढ़ गए, या ये ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका था, क्या हुआ? सर इससे पहले भी ये कोई 12वां केस है वहाँ कसूर में, इससे पहले भी वाक़या हुआ। इवन के पिछले दिनों चूनिया, वहाँ कसूर की 4 तहसीलें हैं, कसूर, चूनिया, पत्तोकी और कोटा दक्षिण। चूनिया में भी ऐसा वाक़या हुआ और उसके बाद फिर फ़ौरन जो है वो नेक्स्ट डे मुबारक हो जी, पुलिस साहब ने वो बंदा ढूंढा और मार दिया। सबसे ज़्यादा पिछले पीरियड में अपने शहबाज शरीफ की जब भी गवर्नमेंट आती है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग बढ़ जाती हैं। और कुछ मखसूस ऑफिसर्स होते हैं जो पुलिस के, जो जब वो मारने होते हैं बंदे तो उनको ड्यूटी लगा देते हैं। पिछले आप ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें कसूर का, पिछले 3 साल से कम से कम मेरे ख्याल वहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है। अब उन्होंने पकड़ लिया बंदा बगैर किसी इंक्वायरी के, हाँ जी इसने ये जो है रेप किया था बाकी बच्चियों के साथ, और उसको अगले दिन मार दिया, जनाब हमने ये जुल्म जो है ख़त्म कर दिया। किया नहीं किया कोई पता नहीं है, वो पुलिस की अपनी जुडिस्डिक्शन है। अभी भी जो इवन के आज भी एतजाज़ ऐसे नहीं बोला है कि भाई ये ना हो कि उसको पुलिस मुकाबले में पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए और उसको इंक्वायरी ना हो सारी। उसका एक कसूर में एक प्रॉब्लम ये है कि जी जो एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ जो भी असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी या जो भी नए जो साहब आते हैं, उनको पहले कसूर जाओ जी, खैर जी। कसूर एक डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट भी है, कसूर बिल्कुल लाहौर के नज़दीक है, लेकिन रिसोर्सेस सारे क्योंकि लाहौर में रख रहे होते हैं। रायवंड से नेक्स्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि 12-15 किलोमीटर की कसूर के पड़ोसी हैं। जी बिल्कुल पड़ोसी है जी। 12 किलोमीटर के शरीफों तक का रोड ठीक है। शरीफ जैसे ही उनकी शरीफों की शराफत का वो जो उनकी हदूद खत्म होती है, उसके बाद आगे कच्ची रोड है। आप अभी भी जाके आप देख सकते हैं वहां कसूर ना करो जी, टूटी फूटी रोडें सर, टूटी फूटी रोड। कसूर से मेन दो तीन कसूर की रोडें हैं। एक कसूर से जो है वो आप दीपालपुर तक जाती है, वो रोड टूटी फूटी है सारी। उसके बाद दूसरी रोड जो है आप कसूर से रायविंड तक जाती है, उसका हाल देख लें। कसूर से कोटा दक्षिण देख लें। अब इसका जो इशू है, इसका इशू ये है कि एक तो इंसाफ, पहले इंसाफ नहीं मिला। इससे पहले भी आपके एक उसी एरिया में यहाँ जो हुआ है, सेम एमएनए था वो। आज भी मैंने इंक्वायरी की क्योंकि उस एरिया का मैं रहने वाला हूं। वहां जो लड़कों की वीडियोस बच्चों की बना के वो बेचेंगे। अब मैंने पूछा कि भाई उसका क्या बना था, कहते जी वो पुलिस वाले अब इस वक्त थोड़े से स्लो थे। वो कहते जी पिछली दफा हमने बंदे पकड़े किए और पॉलिटिकल इन्फ्लूएंस की वजह से उन लोगों को जो है वो सजाएं नहीं मिली। वो किसने इन्फ्लुएंस किया? जो हमारे पॉलिटिशियंस थे वहां, जो सो कॉल्ड हमारे जो हैं, उन्होंने इन्फ्लूएंस करके वो केस लटका दिया। अब पुलिस जो है वो डिमोरलाइज हो गई। उन्होंने कहा जी हमने, और बल्कि ये किया कि उन पुलिस ऑफिस जो वहां के पुलिस के लोग थे उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। हमारे साहब अभी कंफर्म भी कर लेंगे, वहां से जाके पूछ लेंगे बेशक। उनको जो है वो पोस्ट कर, जिस तरह कराची में हम कहते थे कि जिस पुलिस ने ऑफिसर ने किसी को पकड़ा उसको मार दिया गया, सेम वो बता रहे कि उसी एरिया में भी वहां हुआ। 3-4 साल पहले वो इंक्वायरी हुई। और फिर कानून की जब बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह इसमें जो सियासी जमातें हैं वो दखील हो गई। बिल्कुल। अब लोग जो है वो तो उनको पास पहुंचते हैं ना जी, मसाइल लेने के लिए थाना पर कचहरी में जो भी है। अब उन्होंने अपना धड़ा तो कूटना है ना जी, उन्होंने अपने वोट लेने हैं। अब वो पिछला जो केस है अगर उसमें सजा मिल जाती तो मेरा ख्याल है कि अभी ये इस पे न मिलता। उस केस में अभी तक किसी को सजा नहीं मिली, कोई फैसला नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब वहाँ हुक्मरान है, एक तवील अरसे से मौजूद हैं और मुअत्तल बड़ी जल्दी करते हैं लोगों को, लेकिन ना कोई कातिल पकड़े गए और ना कोई चीज़ें पकड़ी गई। और वो अनवर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पे अदालत से बाला ही कत्ल। और ये बारहवां रेप का केस है। मेरी बात, एक तरफ तो ये सबसे आसान काम ये है कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप की बैशिंग करें, बहुत आसान काम है और यही हम करते हैं। अब देखें ना, अगर सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं हुई सर, मुझे याद है वहाँ के वजीर आला और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की बात हो रही है ना, पॉलिटिकल। मुझे इजाजत है ना। अब ये इस मुल्क में आपके यहाँ तो 70-80% तो आपके पास मार्शल ला रहा है, आपके पास फौजी रहे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था यार। नहीं था ये देखे ना, बगैर सोचे समझे ये सर शुजा साहब वो इजाजत है ना, मैं अपनी बात में बड़ी खामोशी आपकी बात में पॉलिटिकल देखे ना, मैं बिल्कुल आपको जकड़ के रखा, आप बिल्कुल बहुत तेज बात कर सकता हूँ, आपकी बात काट सकता हूँ, लेकिन नहीं काटता। अब बारी बारी पे बात करेंगे, किसी बात समझ भी आएगी। मसला ये है कि हम क्यों ना ये वो जो इतना अरसा रहा है
फौजियों की हुकूमत रही है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं था ना, फिर क्यों रहा, क्यों इस मुल्क में हर वो 9 साल से तो आप हैं हुक्मरान यार वहाँ पंजाब में, अभी भी यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि और वैसे आपस की बात है, आपकी लीडरशिप भी आई तो फौजी बूटों में ही बैठ के थी ना यार, आप उन्हीं को बुरा भला कह रहे हैं। इस मुल्क में हर मीडिया चैनल, हर जो है सियासी वर्कर, हर बिजनेसमैन, कोई ऐसा है जो उनके बूटों में नहीं बैठ गया, सारे उसी में बैठ गया। साड़ी भी गल कराओ यार। इसलिए काबिज वो थे जिस खेत में आप और मैं पल रहे हैं, इस पर वो काबिज थे यार। ये उन पर जब एक तवील अरसा पुरानी बात हो गई है सरकार, बहुत पुरानी बात है। अभी कल की बात है, हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है, अभी वो भी इसको 70% नहीं छूटी, 30% हमारी जान छूटी है। 9 साल से आप हुक्मरान हैं कि नहीं? 9 साल से हम जो हुक्मरान हैं, आपके सामने सारी बातें। एक दिन की हुकूमत भी जो है ना इसका किसी यार पंजाब में तो आप हैं पार्टी यार, एक दिन भी हुकूमत नहीं करने दी। उनको मुस्लिम मसाइल में उलझाया गया, कभी इधर धरना लगा, कभी उधर धरना लगा। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट 9 साल से अगर इतने इज्जतदार और इतना आपको गुस्सा था, आप रिजाइन करते, मुंह पे मारते और कहते कि जी अच्छा जी ठीक है। बहुत आसान काम है ये बात कहनी भी कि हम छोड़ दें और चले जाएं, ये बहुत आसान है ये कहना, लेकिन इसी के अंदर से हमने रास्ता निकालना है, और इसके अंदर रास्ता जो है वो एक दिन में नहीं निकलेगा। अगर इस मुल्क कितनी ज़ैनब और कत्ल होंगी तो फिर आप रास्ता अल्लाह ना करे कि किसी और ज़ैनब का मौका आए। 12वां तो ये किस्सा है जी, मैं ये कहता हूँ अल्लाह करे ये 12वां आखिरी हो, अल्लाह करे ये 12वां आखिरी हो, मतलब अल्लाह तक पा दो। नहीं सिर्फ अल्लाह तो नहीं पाओ, इंशाल्लाह इस पर पूरी कौम मिलके, मैं बिल्कुल बगैर किसी पूरी कौम मिलके अगर काम करेगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया उसका हिस्सा होगा, अदालतें उसका हिस्सा होंगी, वकला उसका हिस्सा होंगे, थाना उसका हिस्सा होगा, तो फिर कोई बेहतरी आएगी। चलें जी, फिर तो मुनीर साहब क्या फिर ये तरीका है जिस तरह शुजा साहब कह रहे हैं पूरी कौम जो है ना वो कसूर चली जाए, चलो कसूर चलो? नहीं सर, उसमें क्या आज करें, चीफ सुबह से जस्टिस साहब का टिकट बुक करा ली, आज चीफ जस्टिस साहब का मैं बयान सो रहा था, वो कहते हैं जी हम तो हमारे बस में नहीं है क्योंकि हमारे पास जज ज्यादा नहीं है। ठीक है, हमारे जो पुलिस वाले कहते हैं जी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पॉलिटिशियंस कहते हैं जी हमारी एमपी एमएनए कहता है जी हमारी तो तनख्वाह बहुत थोड़ी है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब ये सारे रिसोर्सेज जो मेरे तेरे टैक्सों पे, या सारा दिन हम एक एक चीज पे, ये ग्रीन टी भी ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है, आखिर वो पैसा कोई तो खा रहा है ना, वो पैसा किसी की सैलरी पे तो जा रहा है ना, कहीं तो जा रहा है। आखिर इस अवाम का क्या कसूर है? उस अवाम को हर बंदा कहता है जी मेरा कसूर नहीं, वो उठा के दूसरे डिपार्टमेंट पे कर देते हैं। अब कोई एमपी, कोई किसी डीपीओ जो है, आप देख लें पूरे पाकिस्तान में उस डिस्ट्रिक्ट का जो उस प्रोविंशियल का प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर होगा उसकी मर्जी के बगैर नहीं लगता, वो खुद लगाते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो एक एक बंदे को रखते हैं, कोई एमपी एमएनए का भी वो कहते हैं कि नहीं जी मैं खुद रखूंगा, सारी अपनी मर्जी से। एक बात तो तस्लीम कर नहीं, लेकिन वो अपनी मर्जी से रखते हैं, वो मोरे अपने रखे होते हैं सर, वो मोरे रखे होते हैं कि ये डीपीओ में रखूंगा तो ये मेरे लिए ये काम करेगा, ये मेरे सर जलसे जुलूस सर, ये कहां से जलसे हो रहे हैं, ये जलसे किधर से हो रहे हैं? ये पटवारी सर, पॉलिटिकल लोग सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बाद आपके ऐसा नहीं है, ये सारे जितने भी हैं आप कोई सर पंजाब में किसी डिस्ट्रिक्ट में बगैर एमपीए या एमएनए की मर्जी से आप एफआईआर दर्ज करा के मुझे दिखा दें। नहीं मुझे आप दिखा दें, कोई आम बंदा चला जाए, मैं चला जाऊं, आप चले जाओ। एक बात पर स्टैंड करें ना, एक बात पर स्टैंड करें, आपकी बात की कंट्राडिक्शन है सर। अभी आपने फरमाया है कि शहबाज शरीफ ने अपनी मर्जी से लगाए और एमएनए एमपीए का उसमें अमल दखल दिया, उनको भी पूछा नहीं है। अभी आप 1 मिनट के बाद ये फरमा रहे हैं कि वहां पे एमएनए एमपीए और एमएनए जब वो जब दोनों बातें तो नहीं हो सकती, एक बात हो सर वो उनको ओब्लाइज करना है ना उसने, अब उसको अपने एमपी एमएनए को ओब्लाइज करना उसने, उसको पता है मेरी। देखें मेरी बात शुजा साहब, बात यह है कि अभी सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है ऑलरेडी कि एक कंपेन स्टाइल में हमारे शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन वो उनकी टीम नहीं बनती, वो अकेले सोचते हैं कि मैं पूरी दुनिया चेंज कर दूंगा। उसके साथ जी बिल्कुल उसके साथ ये होता है कि पूरी टीम बने। वहां उस लेयर में एक मजिस्ट्रेट होता है, जब कोई क्राइम या किसी सिटी पे एक मजिस्ट्रेट है, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके बाद एक डीपीओ है, वो सारी लेयर है। सर सबसे पहले तो वहां पे पुलिस है, हाँ मतलब वो सारा एसएचओ है, लोकल है, वो सारा लोकल, वो क्या वो लेयर उन्होंने मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल किया कि नहीं, जिनकी जिम्मेदारी है, ये बात आपकी ठीक है। अभी ले लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, अगर आपकी साहिबान की इजाजत हो। नाज़रीन अभी लेते हैं शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें।
वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद आपको खुशामदीद गुफ्तगू ये हो रही थी कि ज़ैनब का कत्ल, अल्लाह करे कि आखिरी कत्ल और उसके बाद यहाँ पे भी सुख सुकून की गुफ्तगू हो। वजह ये है कि ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ना इधर कोई इस्लाम की कोई पासदारी है और ना ही कोई जमहूरी रवैये हैं हमारे। चलें जी मलिक साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही थी हमारी, आप क्या हम ये काफ़ी है कि हम उस पर वज़ीर आला पे या गवर्नर पे या जो साहिबान इक़्तिदार हैं या इख्तियार हैं उन पे तनकीद करें और दूसरे लोग आप उसको डिफेंड करें, बस हम टोटल इस बात पे रहेंगे? या कोई हमारी आउटपुट भी होगी कि जी अच्छा जी ये हमारी कारकर्दगी, नॉर्वे में कोई कत्ल नहीं हुआ तो हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लिहाजा ये देखें हमारी मिसाली कारकर्दगी 9 साल में यहाँ पे किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। देखें, अल्लाह करे कोई हुकूमत भी, वो ज़रूरी नहीं कि ये कोई भी हुकूमत हो और वो इस मरतबे पे पहुँच जाए कि वो ये कहने के काबिल हो जो आप फरमा रहे हैं। इसमें ना यहाँ पर अभी जमहूरियत है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ना इस्लाम तो है, उससे अगले मरले की बात है और बेहतर बात है, जमहूरियत भी नहीं है। सिर्फ इलेक्शन करवाने का नाम जमहूरियत नहीं होता। जमहूरियत की जो दुनिया में तारीख है वो आप उन ममालिक देखें, हम तो जमहूरियत में नहीं जा रहे मलिक साहब। इस वक्त इशू जो है ना वो कसूर का है, ज़ैनब का है, यहाँ पे मजलूमों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो लोग कत्ल हो रहे हैं। ये जो हुक्मरान वीआईपी इनके तो कोई नहीं मरते, इनके तो कोई नहीं कत्ल होते। नहीं, ऐसा नहीं है। बेशुमार बेनजीर भुट्टो नहीं कत्ल हुई, एक नहीं कत्ल हुआ। ओ यार 3, 4, 5 और इधर एक साल में आपने 200 बंदे मार दिए। मुझे इजाजत दे। मसला ये है कि ये मुल्क पूरे का पूरा मुल्क अल्लाह के हम पकड़ में, हम अजाब में, हम सब जालिम हैं और हम सब मजलूम हैं। दोनों बातें, ये 20 करोड़ आदमी मेरे समेत हम सारे के सारे जालिम हैं और सारे के सारे मजलूम हैं। देखें ना, आप यहाँ से उठे, ये आपके हुक्मरान सोते आप मुझे सुन लें, ये नहीं वैसे ही मैं एहतियातन पूछ रहा हूँ, ये सोते किस तरह? रात को नींद आ जाती है इन लोगों को? 5 बजे जो गया ना, जिस पर आपने अभी तनकीद की है और आपने कोई उसका मुस्बत पहलू देखने के लिए बिल्कुल आप तैयार नहीं है, और ठीक है आपका गुस्सा भी बजाया और केस भी ऐसा है जिसमें हमारा सबका गुस्सा होना भी चाहिए। वो 5 बजे इसीलिए गया कि रात को नहीं सो सका। वो अगर रात को सोया होता तो फिर सुबह 5 बजे ना जाता, उसको डर नहीं था। वहां अगर रेंजर्स बार लग जाए, पुलिस लग जाए तो वहां कोई नारेबाजी नहीं होती जिसका आपने तज़किरा फरमाया। लेकिन वो इसीलिए गया है 5 बजे सुबह उठ के कि रात को नहीं सो सका। और मेरे जैसा आदमी और आप जैसा आदमी आप तो इस तरह कह रहे हैं जिस तरह आप उसके पास बैठे हुए थे तो वो बेचारा सो ही नहीं सका। खुद का उसने। और मेरा ख्याल है 5 बजे जाना इस बात की दलील है। देखे ना, अगर रात को ही जाना होता तो 12 बजे बंदा जा सकता है ना, ठीक हो गया, 1 बजे भी जा सकता है। अनवर साहब, इसके लिए वहां पे ऐसा है कि आइंदा वहाँ की जितनी सियासी जमातें हैं या मीडिया है या NGOs हैं, वो सारे मिलजुल के ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा इस तरह का कोई सानहा रूनुमा ना हो। सर, उसके लिए एक नेशनल लेवल पे हमें जो है वो पूरा अपना सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। हमें जो है वो बच्चों को, छोटे बच्चों को खासतौर पे जो है उनको बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए हम पेरेंट्स भी और स्कूलों में भी ये कुछ सिलेबस एथिक्स का दिया जाए जिसके तहत उनको पता हो कि जी मेरे जिस्म के कौन से हिस्से जो हैं जिनको नहीं छू सकता। अगर कोई इस तरीके से मुझे अपने साथ वर्गला के ले जा रहा है बच्चे, मैं ना जाऊं। मैं तो ये स्कूलों में और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को फिर मोटिवेट करें। और जहां तक अभी कसूर का इशू है उसको पोलिटिसाइज ना करें। हम ये नहीं कि अब ये PMLN का या PMLQ का वो या वो दूसरा है, आए दिन जा रहे हैं वो वहां, और फिर उसको मजहबी रंग भी ना दें। अब हमारे जो है इवन के वहां GIT का जो मेंबर है वो पता लगा कि वो कादियानी है, जो हमारे उन्होंने कहा कि नहीं मैं इससे तफ्तीश नहीं कराऊंगा। वो मतलब एक इंस्टीट्यूशन को तबाह करने वाली बात है। और फिर मान लिया गया गवर्नमेंट ने वो हुकूमत पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान वो एम्प्लॉई सर, वो बात वही है कि उसको ठंडा जो मांग रहे हैं दे दो जी, बस गुस्सा ठंडा करो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मजहबी ये रंग नहीं है। उसको मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। सिलेबस को हम चेंज करें, सारा उसको सेट करें और सेम टाइम पे पोलिटिसाइज ना करें, लेकिन साथ साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इसको लोकल जो लेवल पे जो आपने MNA MP उनका जो इन्फ्लुएंस्ड है वो अभी पुलिस के साथ सारे उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं कि जी पुलिस ऐसी की तैसी बेकार है। लेकिन परसों 2 दिन पहले जो है वो सारे पुलिस के साथ साथ वो चल रहे होते थे। पुलिस काम उन्होंने कराना है ना जी, झूठे सच्चे मुकदमे उन्होंने कराने होते हैं। मलिक साहब, आपने कहा था ना बेनज़ीर भुट्टो की हवाले से गुफ्तगू की और ज़ैनब का इशू को और लियाकत अली खान को आपने को रिलेट किया, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि ये तो मोहतरमा का तो जो कत्ल था वो तो दहशत गर्दी थी और ये मुआशरती मामला है। ये जो ज़ैनब का इशू है ये तो मुआशरती बुराई का शिकार हुई है। वो आप उन दोनों को को रिलेट कर रहे हैं? तो वो क्या, वो जो है जो दहशत गर्दी है वो मुआशरती बुराई नहीं है? दहशत गर्दी क्या चीज़ है? दहशत गर्दी भी एक माशरती बुराई है।
دیکھیں میں یہی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں جو یہ میں نے کہا کہ ہم سب ظالم ہیں اور سب ہم مظلوم ہیں. ایک جگہ پہ ہے. دیکھیں میرے بھائی جو ابھی بات کی ہے یہ سلیبس چینج کریں گے, یہ صرف ایک سلیبس چینج نہیں ہے. جب 8 بجے کے پروگرام صرف اس بات پہ نہیں ہوں گے کہ اس کو نکال دیا اور اس کو ڈال دیا ہے, اس بات پہ بھی ہوں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ کئی دن سے نہیں میڈیا نہ کہتا تو یہ شہباز شریف صاحب اور باقی لوگ جاتے ہیں کہ ہلتے جلتے بھی نہ. میں مان لیتا ہوں کہ میڈیا اگر نہ کہتا تو شہباز شریف بالکل نہ جاتا, یہ کیس بالکل دب جاتا, میں مان لیتا ہوں, میں اس پہ ڈبیٹ ہی نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ میڈیا نے اتنا ہی کام کر لیا ہے اور میڈیا کو ہم اس کا کریڈٹ بھی دے رہے ہیں اور اس کو سلام بھی کر رہے ہیں, تو پھر میڈیا یہ بھی اس کو اگر کنٹینیو کرے گا تو اگر کوئی اس میں غفلت بھی حکمران کوئی برتے گا یا کوئی سرکاری عہدیدار برتے گا یا کوئی ذمہ دار برتے گا تو پھر وہ برتنے کے قابل نہیں ہو جائے گا. اس کی پرائرٹی کی ترجیحات آپ دیکھیں ملک کی بنیاد میں کئی دفعہ چکا. میڈیا یہاں حکمرانی نہیں کر رہا سر جی, نہ تو وہ وزیر اعلیٰ. کیوں نہیں انور صاحب, میڈیا کی ذمہ داری. میڈیا ایک وسل بلو ہے سر, اس نے شور ڈالنا ہے کہ ہاں جی ہو گیا, لیکن کتنا شور ڈالے گا. ایک کے بعد ایک تواتر سے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں نا. اسلام آباد کا آپ کے سامنے آسیا کا ایشو تھا, اس سے پہلے بھی میں تو یہ سارے ہم ایک رونا رو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر نیکسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ طاہر القادری کے ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے آپ نے مار دیے, ہماری پرابلم بہت شور کیا آپ نے تو کہا جنگی صاحب ہماری پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ملک میں ایک قیاس ہے, کوئی ایک ایسا لگ رہا ہے جس طرح انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے نا جی کہ اچھا جی یہ 2-3 مہینے کی بات ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. کوئی بھی ایون کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہے, پی ایم ایل بھی جلسے کر رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف ہی کر رہی ہے, وہ سارا جو ہے وہ فوکس کریں اپنی ڈیولپمنٹ. نہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف نہیں کر رہی, وہ تو عدلیہ کے خلاف اور اس اندیکھی طاقت کے خلاف جس کے بارے میں گورنمنٹ ہے نا. لیکن کام جو ہے وہ تو چلے نا آگے. آپ کا پورا بزنس ٹھپ ہوا پڑا ہے, آپ کے کرائم ریٹ اس وقت بڑھتے ہیں جب کسی کو نوکری نہیں ملتی, کسی کو روزگار نہیں ملتا, اور پھر یہ ایتھکس جو ہے ہم اس کو چیزوں کو ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے, اور پھر ایک دوسرا جو ہے ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کمپین سٹائل میں چلاتے ہیں کہ بس ایک ہو گیا آج اس کو معطل کر دو, آگے پھر بھول گئے. بھائی یہ پوری چینج ایک لائیں, اس ایک پروسیس کے تحت ایک لائیں, اس کو سٹارٹ کریں ایک سلیبس میں, اور وہ اس طریقے سے کریں. یعنی یہ جو انور صاحب نے کہا, اگر ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں, شہباز شریف صاحب 9 سال سے اقتدار میں موجود ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال چھوٹی سی میں دے رہا ہوں. سلیبس 9-10 یعنی کہ جو کلاسز ہوتی ہے نا جی, کبھی کہتے ہیں اپریل میں ہوتا تھا, نہیں جی اپریل سے نہیں, اب ہم نے جنوری سے سٹارٹ کر دینا ہے, اب نہیں جی اس سال ہم نے مارچ سے سٹارٹ کر دینا ہے. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. فرسٹ ایک فیل ہو رہا ہے سسٹم, اس کے بعد پھر دوسرا ہو رہا ہے. کمپین سٹائل مت چھوڑیں, اچھے جو ہے وہ دیکھیے مشورے لیں باقیوں سے. آپ کے سامنے جو سکول بنائے گئے, اتنے کاسٹلی سکول بنائے گئے, سارے بند پڑے ہوئے. ڈی جی خان میں جا کے دیکھیں, وہ آپ کے سکول بند پڑے ہوئے جن کے اوپر کروڑوں روپیہ جو ہے وہ قوم کا لگا. ویسے یہ جو ہے ملک صاحب, شہباز شریف صاحب بہت ایکٹیو آدمی ہیں, بہت انتھک کہتے ہیں جی آدمی ہیں, لیکن ان کی ساری جتنی کوشش کاوش جسمانی اور سرکاری وسائل جتنے بھی لگتے ہیں, وہ عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ پرائرٹی جو ہے نا پل ہے, سڑک ہے, اور لوگوں کو معطل کرنا. یہ وزیر اعلیٰ برائے معطلی اور وزیر اعلیٰ برائے پل سڑک ہے. وہ وزیر اعلیٰ اگر تو جس کو معطل کیا ہے اس کو گولی مار سکتا تو آپ اس کو کہیں کہ وہ گولی مار دے. اب وزیر اعلیٰ کے پاس تو یہی اختیار ہے کہ جہاں پہ کوئی شکایت آتی ہے اس کو معطل کر دے. سسٹم بنائے سر, سسٹم بنائے. وزیر اعلیٰ کا یہی کام ہے کہ وہ سسٹم بالکل بنا ہوا ہے, سسٹم بالکل بنا ہوا ہے. اصل میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں, سسٹم کوئی برا نہیں ہے. یہ پاکستان کا جو سسٹم ہے, یہی انگلینڈ میں یہی سسٹم اینگلو سیکسن لا چل رہا ہے اور یہی سسٹم چل رہا ہے. کوئی اس میں برائی نہیں ہے. برائی پتہ ہے کیا ہے؟ Man behind the system is more important than the system. تو ابھی تو پنجاب میں یار شہباز شریف صاحب ہیں اس سسٹم کی بیک پہ. اجازت دینا, بات تو پوری کر لوں. شہباز شریف تھانے میں تھانے دار تو نہیں نا بیٹھا ہوا, لگتا تو ہے وہ اس میں اسسٹنٹ کمشنر کی جگہ بھی تو نہیں بیٹھا ہوا نا. آپ کی بدقسمتی یہ ہے, آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے جو ضلع ہیں آپ کو اتنے ایس پی اویلیبل نہیں ہے اس معیار کے سٹینڈرڈ کے, آپ ایک ضلع کے انچارج لگائیں. آپ کو ڈھونڈ کے آپ کو آئی جی لگانے کے لیے آپ کو اتنی مصیبت کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کو ایسا بندہ مل جائے جو اس نظام کو کچھ بہتر کر سکے. نظام کو بہتر نہیں ہے جو ہمارے لیے سوٹیبل ہو, ہمارے لیے سوٹیبل ہو نا جی. آپ بیرونی ملک نہیں شک نہیں سر, شک نہیں ہوتا, فیکٹ ہوتا ہے. سندھ میں ہمارے سامنے ہوا ہے سر, یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے. سندھ میں ایڈی خواجہ تھے, میرٹ پہ تھے, ان کو نہیں کام کرنے دیا سر.
सर, उसको- सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, वो कब का वहां से भाग गया सर होता, मैं उड़ कहता गया हूँ कि होता। वो उस सूबे ने यही- उस चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं करने दिया। नहीं तो कराची हाँ, ऐसा चले, आपकी हाँ, बात मैं कर कहता हूँ रहा हूं, मैं आपकी बात सर कर रहा हूं। मैं कहता हूँ कराची में उसको crime खत्म हो गया, सर उसको नहीं काम हुआ। सर इसलिए कितने पुलिस वाले उसने सर निकाले वहाँ हैं, उस वहाँ बेचारा बेबस है। सर वहाँ के सिंध के चीफ मिनिस्टर ने बेबस किया हुआ है वो ना, नहीं किया हुआ, किसने बेबस किया हुआ है उसको? आईजी को कौन बेबस कर सकता है, वो अगर बैठा हुआ अपनी नहीं जगह तो पे फिर क्यों नहीं काम कर- करने दिया गया? देखिए एक लिमिट है उसके काम करने की, सर सब लिमिट से आगे नहीं सर काम कर सर सकता। ऐसा नहीं है सर। नहीं- पॉलिटिशियन जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो अपना कोई भी डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर, अब एक आईजी का काम है ये सारा सस्पेंड करना, ये होना एक अच्छा दिन में। अच्छा अनवर साहब आईजी को रोका हुआ है कभी चीफ मिनिस्टर ने? मुझे तो बताइए, फिर- पंजाब की बात कर रहे हैं, तो छोड़ो फिर- इसको, फिर सिंह को छोड़े, सर, एक मिनट IG मेरे competent, सुनना। आप IG मुझे एक मिनट बात का जवाब दे देना। मैं दे देता आईजी को कितनी दफा सीएम पंजाब ने कहा है कि फलां फलां आप थाने में बेहतरी कर सकते हैं, ना करो, मुझे बताएं। अब मुझे तो नहीं बताएगा वो आईजी। कमाल है, आपको आईजी नहीं आप बताएगा। अपनी मर्जी आपको से, कहते हैं, आपके पास अगर assume ना करें। आपके पास अगर कंपिटेंट बंदे ही नहीं है, फिर सर आपके पास कंपिटेंट यही बंदे नहीं मसला है है इस कौम का। सर, आपकी सर, जो सर, जो सर, आपकी इस जो कौम में- सिविल सर्विस है, सर, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 30% भी नहीं है। सर आप लोगों ने 30% भी नहीं है। सर मैं फिर दोबारा सिविल यही सर्विस कहूंगा, का- पीएमएलएन की हुकूमत जो है पिछले 30 साल से आप लोग इसमें थे, नहीं, मैं- और 30 साल से 2 आप लोग उनके अपॉइंटमेंट कर रहे थे, आप लोगों ने उनके बोर्ड बनाए कहां खुद से के लाए सिलेक्शन वो का। आपने बताएं, बंदे कहां से पाकिस्तान लाए? में सर एलीट क्लास आपके वो elite class- सर मेरिट पे, आप मेरिट पे करें सर, आप मुझे मेरिट पे एक करें। पोस्टिंग आप बताएं पंजाब की, मुझे बताएं पंजाब के एसपी, डीपीओस और डिप्टी कमिश्नर्स, मुझे बताएं कि फलां आदमी जो है वो बगैर मेरिट के लगा, बताएं मुझे नाम ले। सर ये इन बंदों के, इन लोगों के, नाम ले- अगर आप नहीं, कहते हैं कि नहीं, नहीं मलिक है साहब, सर, मलिक शुजा साहब ऐसा नहीं है। अभी आप इस खुद कौम कह में- रहे थे इस कि कौम में आप कहते हैं हमें कि बंदे दस्तयाब नहीं नहीं है, है, available अभी आप है। कह रहे हैं कि नहीं, मेरिट नहीं, पे नहीं, लगाए हैं नहीं, बंदे। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे वही बंदे जो ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे बंदा जा रहे हैं। नादरा का जो सबका हमारे जो यहाँ थे उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा जी नहीं इसको निकालो। नाम बताएं ना, फलां आदमी निकाला आपको पसंद नहीं आया। उन्होंने नादरा के चेयरमैन सर साहब नाम नादरा के chairman पर्सनल आप पूरे जानना पंजाब चाहो से मैंने ना, उनको निकाला। बाहर निकाल दिया, बाहर उनको वर्ल्ड बैंक ने ले लिया कि कंपिटेंट बंदे हैं। सेम इस तरीके से कंपिटेंट बंदे आपके पे हैं, लेकिन अंदर आपको साहब, ऐसे मुझे बंदे पंजाब चाहिए। का एक डीपीओ, एक डिप्टी कमिश्नर बता दे जिसको शहबाज शरीफ ने बगैर मेरिट के लगाया, नाम ले। सर आई मेरिट पे- जी सर जी बताएं IG डीपीओ का, बताएं IG। आप तो बेस्ट अवेलेबल ऑफिसर पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, बेस्ट अवेलेबल जो अवेलेबल है उनके अंदर से सर ऐसा नहीं है पाकिस्तान, इसका मतलब है, इसका मतलब हम इस काबिल ही नहीं है फिर सिस्टम को चलाने के, तो फिर ये क्यों मैं क्या आप- करूं? पहले आपसे आज कर रहा हूं कि आपकी सिविल सर्विस 30% सर कैपेसिटी से सर्विस नीचे काम पर्सन कर को रही है। किसके पीरियड में रखा गया जी? है? उसका सिलेबस कोई बात- सिविल सिविल सर्विस सर कौन रखता है? आपको नहीं पता? सर मुझे पता है कौन रखता है? पब्लिक सर्विस रखता है, वो- उसके अपॉइंटमेंट मेंबर कौन, उसका मेंबर कौन अपॉइंट करता है? बताएं। नहीं कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर करता मान है, लो। प्राइम मिनिस्टर करता है। यहाँ- आप मुझे बता यहाँ दें। रुके ना, मैं आपसे सवाल हाँ करूं। आप यहाँ मुझे रुके ना। जी मैं जितने मेंबर बनाए गए हैं उनमें से एक का बताएं कि ये मेंबर आउट ऑफ मेरिट है। तो फिर अगर वो कंपटीशन नहीं है सर, अगर जब capacity आप है, merit- यही इसका मैं मतलब आपको- यही बात मैं वाजे करना चाह रहा हूं सर- कि इस वक्त हमारे नेशनल लेवल पे हमारा जो इस मुल्क का बहरान है वो ये है कि हमारी कंपिटेंसी जो है वो 30% भी नहीं है। इसका सर, मतलब नहीं है है, मलिक साहब सर नहीं है, अच्छा, कंपिटेंसी को यूज नहीं किया जा रहा। अच्छा, मेरा ये है मुझे बताएं कंपिटेंसी ना, को मुझे यूज। ये बताएं, मुझे आप ये बता दें, सजेस्ट करें ना। देखिए हम सब लड़ाई करने के लिए तो नहीं बैठे। सर मैं अगर हम पत्थर मारने के लिए एक सर दूसरे अगर को नहीं मैं बैठे। अपने ऑफिस में Suggest आऊं करें। सर, आप शुजा साहब मुझे- मैं शुजा साहब जी अच्छा मैं जिस चले ऑफिस में चले हूं- चले चले ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ से कोई तजवीज दे के उठें। हाँ, चले ये चले बात- इस तरह सर, कर ये बात लेते है कि हैं, आप- इस तरह कर सर, लेते ये हैं, होना क्योंकि चाहिए। हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल सर बिल्कुल जंगली इख्तितामिया साहब, है, उसमें ये है, तो अगर तजवीज आ उसमें जाए ये है कि जो सिस्टम को हम आगे हम जो है कंपेन स्टाइल में ना करें। अगर आटा खत्म हो गया तो हम सारे डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स को बता दें कि तुमने हॉस्पिटल में नहीं जाना, तुमने रमजान में सिर्फ जो प्राइस चेक करनी है और करना है वो ना करें। हर बंदा अपने अपनी डिपार्टमेंट में उन्हें को जी आप लोग काम करो, ठीक है, काम करो ठीक और हो गया। सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करें। और जो उनके मिनिस्टर्स बने हुए हैं ना, सारे मिनिस्टर्स हैं आपके 25 30 50 मिनिस्टर जिनको पैसे जा रहे हैं, वो काम करें अपने। हर एक मिनिस्टर अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज का वो ठीक हो करे गया। सारा। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो सोए 7-8 घंटे, उनकी जरूरी है सोना, ताकि वो और अच्छे फ्रेश होके अपने डायरेक्ट वो जारी कर सके, उनको गाइड कर सके। टीम का लीडर है, अगर टीम ठीक का हो लीडर गया। हर जगह पे जाएगा तो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन टीम का लीडर हर जगह पे नहीं जा सकता। बाकी लोग जो पॉलिटिकल पार्टी ये हैं वो इस केस को, जो मेरी अपनी ये है कि रिक्वेस्ट है कि वो इसको पोलिटिसाइज ना करें और सेम टाइम पे इसको मजहबी बुनियादों पे मत ले जाएं। ओके, इसका कोई हल यानी हल इसके तय लिए कि कर हम- दें। बुनियाद नहीं है, हल- बुनियाद और सर, है। सर, वो सर, आपकी तजवीज आ गई जी। मलिक साहब आपकी तजवीज, उनकी तरफ से तजवीज आ गई, आपकी तरफ से तजवीज। तजवीज ये दो हिस्सों में इसका, जी, एक जी। गवर्नमेंट का काम और बस एक हमारा सोसाइटी चूंकि का प्रोग्राम का टाइम सोसाइटी इख्तिताम का पजीर है, काम- अगर आप सोसाइटी का काम सोसाइटी करेगी, मीडिया का काम मीडिया करेगा। बतौर गवर्नमेंट के जिम्मेदार अफसरों का और गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो अपने अपने हिस्से का हम सब मिलकर काम करेंगे तो अगली ज़ैनब बच सकेगी। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया मलिक शुजा साहब आपकी तशरीफ आवरी का, मोहम्मद अनवर साहब आपकी तशरीफ आवरी का।
ناظرین گفتگو جو ہے وہ اس معاملے تک پہنچی، ملک شجاع صاحب کہتے ہیں کہ سارے اپنا اپنا کام کریں، اور انور صاحب کا خیال ہے کہ یہ تمام تر جو وزراء ہیں یا جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، لیکن احتیاطاً، میں ویسے ہی احتیاطاً گزارش کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ لگے ہوئے ہیں اور پچھلے 9 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ مہربانی فرمائیے اپنے بچوں پہ بھی، ہمارے بچوں پہ بھی، کہ ہم آخر ہمیں مرنا بھی تو ہے، کس منہ سے ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اور بتائیں گے کہ جناب علی یہ ہمارا کردار رہا اور یہ ہمارے معاملات رہے۔ پولیس ہے، چاہے لوکل لیول پہ ہے چاہے بڑے لیول پہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے یا باقی جو لوگ ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، نہ ہی اس کو مذہبی رنگ دیا جائے، بلکہ انصاف فراہم کرنے کے لیے تمام تر قوت، ریاستی قوت اور حکومتی قوت بروئے کار لائی جائے، تاکہ کوئی اور زینب ہمیشہ کے لیے یہ طے پا جائے کہ کوئی اور زینب ظلم کا شکار نہیں ہوگی، بلکہ امن ہوگا، سکون ہوگا، سہولت ہوگی۔ جن یورپی ممالک کو ہم صبح دوپہر شام مولوی صاحبان اور ہمارے دوسرے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اگر اسلام کا سسٹم لانے میں آپ کو تکلیف ہے تو پھر یورپ کا سسٹم ہی لے آئیے، کم از کم امن و امان کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ بس اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر، رضا جنگوی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔